Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss about important concepts of UGC NET, the summer exam 2020-24. Now I am going to discuss first concept, that is related to discrete discrete structure. In discrete structure, I will take first topic related to graph theorem. Now I am going to discuss about in detail graph theory. First point, what is the basic rule of graph theory? Basic rule of graph theory is that if vertices are odd, then edges should be always even. Example, we have given n is equal to 5, means vertices is equal to 5, that is in form of odd. Now we have to calculate number of edges. How to calculate number of edges? We will take here formula n bracket start n minus 1 over 2. This is formula for calculating number of edges. 5 minus 1 over 2. You will find 5 multiply 4 over 2. 2 2s are 4. 5 2s are 10. You can see here 10 is a even number. So this is a basic rule that if number of vertices is equal to odd, then number of edges are always even. And for finding number of edges, formula will be n bracket start n minus 1 over 2. Now second important term, that is, what is trial? Trial means when vertices can repeat. Vertices can repeat, but edges cannot repeat. Edges cannot repeat. It means starting and ending vertices. Starting and ending vertices should not be same. Should not be same. Like this, like trial, circuit. Also tells us that vertices repeat, but edges not repeated. But here starting and ending vertex should same in both points. What is the difference mean? That is, starting ending vertices in case trial should not be same, but in case circuit they can be same. Now next point is path. What is path? Path means when vertex and edges cannot be repeated. जब vertices and edges जो हैं
रिपीट नहीं हो सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? पाथ। नेक्स्ट है साइकिल। साइकिल मीन्स closed path. Cycle means closed path. It means trial and circuits are same and path and cycles are same. Now next point is, what is null graph? What is null graph? Null graph means it has no edges. When there is no edges, that is mean null graph, like this: A, B, C and D, but there is no edges, so that's why it is a null graph. Now next is multigraph. Multigraph. Multigraph means multiple edges between same vertices. Multigraph means multiple edges between same vertices. जब सेम वर्टिसेस के बीच में मल्टीपल एजेस हों, उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल ग्राफ. Like we have given P, Q. This is one edge and here R, P match with R and R with Q, and P also here match by this way Q. This means multiple edges same on the same vertices, that is known as multigraph. Now next is a regular. What is a regular graph? Regular graph. Regular graph means, just wait. Regular graph means all vertices have same edges, oh sorry, same degree, not edges, same degree. जब सभी जितने भी वर्टिसेस होंगे उन सभी की डिग्री अगर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर ग्राफ. एग्जाम्पल, दिस इज ए रेगुलर ग्राफ. A, B, C, D. This is a regular graph.
क्यों? क्योंकि हर एक वर्टिसेस की कितनी एजेस है? टू, टू, टू एंड टू. So this is a regular graph. Now next is a, what is a complete graph? Complete graph. Complete graph means two vertices. Two vertices join by one edge. ये दो वर्टिसेस जो हैं वो ज्वाइन है एक एज के साथ, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट वर्टिसेस, कंप्लीट ग्राफ. फॉर एग्जांपल ये हमारे वर्टिसेस हैं. हर एक वर्टिक, ये देखो ये वाला वर्टिक्स जो दो वर्टिसेस है, इनमें एक ही एज है ना. यहाँ पर भी एक ही एज है, यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ पर भी एक एज है. अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो इनके बीच में भी एक एज बन रही है. ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ तो इसके बीच में भी एक एज बन रही है. तो ये क्या है हमारा कंप्लीट ग्राफ. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पर दो वर्टिसेस के बीच में टू एजेस बन गए. तो ये हमारा, इसको हम कंप्लीट में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये लूप बन गई हमारी. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास यूलेरियन ग्राफ. यूलेरियन ग्राफ जो यूलेरियन ग्राफ है इसका मेन फोकस किसके ऊपर होता है? एजिस के ऊपर. मेन फोकस कहाँ पर है इसका? फोकस ऑन एजिस. ठीक है. अब इसके रूल्स क्या हैं? कौन से रूल्स इसके लिए हम फॉलो करेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट रूल है कि इसमें इवन डिग्री जो है सभी वर्टिसेस में होगी. इवन डिग्री अगर सभी वर्टिसेस में है तो ये और डिग्री सिर्फ दो वर्टिसेस में ही अलो करता है. मतलब जितने वर्टिसेस हैं उनकी क्या है, वो इवन डिग्री की सभी वर्टिसेस है. बट इसके साथ वो दो वर्टिसेस ऐसे होंगे जिनकी ओड डिग्री होगी. सिर्फ टू वर्टिसेस की ओड डिग्री होनी चाहिए, टू वर्टिसेस की. ठीक है. ओनली टू वर्टिसेस हैव ओड डिग्री. नेक्स्ट, एजेस अगर रिपीट हो रहे हैं, एजेस रिपीट ओनली वन वर्टिसेस मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड, मे और मे नॉट. मतलब इसमें जो एजेस होंगे मल्टीपल टाइम्स, सॉरी, जो एजेस हैं एजेस रिपीट ओनली वंस, सिर्फ एक बार रिपीट कर सकते हैं एजेस को. लेकिन जो वर्टिसेस हैं वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकती है. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. मतलब रिपीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जितने भी वर्टिसेस हैं उनमें इवन डिग्री हो. बट इसके साथ वो दो वर्टिसेस को और डिग्री अलाउड करता है. कौन कौन सा ग्राफ? आइलर ग्राफ और यू कैन से यूलेरियन ग्राफ. अब इसमें एजेस रिपीट एक बार होंगे लेकिन वर्टिसेस को मल्टीपल रिपीट कर सकते हैं. मतलब रिपीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. थर्ड रूल ये हमेशा कनेक्टेड होंगे. ऑलवेज
कनेक्टेड। अब ऑलवेज कनेक्टेड का मतलब क्या है कि इसमें सभी एजेस कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये इसका रूल है। नाउ व्हाट इज आइलर पाथ? व्हाट इज आइलर पाथ? आइलर पाथ, वॉक, साइकिल, तीनों सेम थिंग। तीनों के लिए क्या रूल है? आइलर पाथ, वॉक और साइकिल हमेशा क्या यूज करते हैं? यूजेस एवरी एज, हर एक एज को ओनली वंस, सिर्फ एक बार, ठीक है। सेकेंड, ओनली टू ओड वर्टेक्स होंगे, ओनली टू ओड वर्टेक्स अलाउड, ओनली टू odd vertex allowed, only two odd vertex allowed, ठीक है। क्या रूल है आइलर पाथ और वॉक और साइकिल के लिए? कि हर एक एज एक बार यूज होगा और दो ओड वर्टेक्स ही सिर्फ अलाउड है। नेक्स्ट है हमारे पास आइलर सर्किट एंड टूर। आइलर सर्किट और टूर का मतलब है कि इसमें भी सेम जैसे आइलर पाथ, वॉक और साइकिल है उसमें यूज करते हैं एवरी एज ओनली वंस, सेम इसमें भी यही है। फर्स्ट वाला रूल इम्प्लीमेंट यही होगा, यूजेस एवरी एज ओनली वंस। बट इसके सेकेंड रूल ये है कि जो इसका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, स्टॉप जो होगा वो सेम वर्टेक्स पर होगा। कहाँ पर होगा? सेम वर्टेक्स पर। तीसरा यहाँ पर एक रूल इंप्लीमेंट हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ डिग्री इज इवन फॉर एवरी वर्टेक्स। कहता है इसका स्टार्ट और स्टॉप जो है सेम वर्टेक्स होगा। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, जब डिग्री इवन होगी हर एक वर्टेक्स के लिए, तब हम कहेंगे कि इनका स्टार्ट और स्टॉप जो वर्टेक्स है वो सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसका फॉर्मूला, आइलर का फॉर्मूला क्या है? इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये है, R इज इक्वल टू E माइनस V प्लस 2। क्लियर? अभी हमने एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया कि इसका स्टार्ट स्टॉप सेम वर्टेक्स होता है आइलर सर्किट और टूर में, और इफ एंड ओनली इफ डिग्री इज इवन फॉर एवरी वर्टेक्स। बट इन केस आइलर पाथ, वॉक एंड साइकिल, इसमें भी तो कोई रूल होगा ना ऐसा। तो वो ये कहता है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है
same and all are even degrees. नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए एक डायग्राम ले रही हूँ जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा भी किस में क्या चीज़ हो रही है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक डायग्राम गिवन है. ठीक है, यहाँ पर ये वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3 एंड वर्टेक्स 4 एंड दिस इज ए वर्टेक्स 5. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आइलर सर्किट्स बन रहा है. कैसे सर्किट बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है V1 से V5, V5 से ये V3 के पास गया, फिर V3 से V2 के पास, फिर ये V2 से V5 के पास, फिर ये V4 के पास, देन ये एंड यहाँ पर पहुँच गया. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, दैट इज V1. ठीक है, दिस इज ए स्टार्ट एंड एंड पॉइंट है, ये सेम है और सभी की क्या है, इवन डिग्रीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2 है, इसकी डिग्री इधर से कितनी है 4 और इधर 2, इसकी डिग्री भी 2 आ रही है और इसकी डिग्री भी 2 आ रही है, तो सभी इवन डिग्री है. ये प्रूव कर रहा है कि ये आइलर सर्किट है. नाउ नेक्स्ट, पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ. हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एजेस हैं सॉरी हैमिल्टोनियन में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ये ग्राफ जो है इसमें जितने वर्टिसेस हैं वो सिर्फ ट्रेवल, मतलब उन सबको क्रॉस किया जाएगा, ट्रेवल किया जाएगा वर्टिसेस को सिर्फ ओनली वंस इन केस ऑफ पाथ. पाथ के केस में ये सिर्फ एक बार ही क्या होगा, ट्रेवल होगा. क्या, वर्टिसेस ट्रेवल vertices only one time in case of path. Second, first and last node is same in case circuit. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसका जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये है, डिग्री ऑफ वर्टिसेस प्लस डिग्री ऑफ एजेस. सॉरी, डिग्री ऑफ वर्टिसेस प्लस डिग्री ऑफ vertices equal to that will be greater than equal to n. ये एक वर्टिसेस की डिग्री होगी, ये दूसरे वर्टिसेस की डिग्री होगी. एग्जाम्पल,
here we have one diagram of graph A, B, C. A is degree 2, C is degree 2, B is degree also 2. And in formula which I have written, degree U plus degree V plus greater than equal to n. N we have given n, that is 3, because 1 2 3 nodes. So here degree 2, A is degree 2 and B is degree also 2, that is greater than 3. 4 is greater than equal to 3. Now if we write here degree plus W, in W we will take C's degree. When we add all these degrees, they are greater than equal to number n. Now नेक्स्ट जो रूल है इसके लिए वो क्या है, दिस इज रूल टू चेक whether graph is Hamiltonian और नॉट. कहने का मतलब है कि ये जो डिग्री वाला फॉर्मूला है वो कब लगाया जाता है, जब हमने ये चेक करना है कि ग्राफ हैमिल्टोनियन है या नहीं, तब हमने इस फॉर्मूले को लगाना है. और फोर्थ रूल ये कहता है नो नीड टू ट्रेवल ऑल एजेस. सभी एजेस को ट्रेवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन इट शुड कवर ऑल वर्टिसेस वंस. एक बार सभी वर्टिसेस को इसको कवर करना चाहिए. नेक्स्ट रूल कहता है इफ देयर अगर वहां पर एग्जिस्ट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है लाइक बी, दैट मीन्स, तो इसका मतलब है दैट मीन्स graph can never be Hamiltonian. क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट जैसे कि बी है वो एग्जिस्ट करे, कहाँ पर एग्जिस्ट करे, ये डायग्राम बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. ये देखिए हमारे पास मान लो ए बी सी डी ई ये वर्टिसेस अवेलेबल है, बट ये एक वर्टिसेस जो बीच में बी अवेलेबल है, इसकी बात की जा रही है कि अगर एग्जिस्ट करता है कोई भी पॉइंट बी, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है वो हैमिल्टोनियन नहीं हो सकता.
ये कौन सा ग्राफ है? आइलर ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? आइलर ग्राफ है, बट नो हैमिल्टोनियन। ग्राफ। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ बी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानर ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानर ग्राफ। प्लानर ग्राफ में क्या बताता है? इसमें कहता है कि जो एजेस है, जो हमारी इसकी ग्राफ की एजेस होंगी, शुड नॉट गेट क्रॉस्ड ओवर अदर एज। भी एक दूसरे एज के ऊपर वो क्रॉस ना करें। अगर वो क्रॉस करती है तो वो प्लानर ग्राफ नहीं है। हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है ये वाला ग्राफ, जैसे B1, B2, B3, B4, like this. Wait. We have given this example graph. You can see here अगर क्या है पॉइंट कि जो एजेस है वो क्या शुड नॉट गेट क्रॉस। जैसे ये एजेस B1, ये B1 और B2, इधर से B3 और B4 ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। अगर ये क्रॉस कर रही है तो ये प्लानर ग्राफ नहीं है। लेकिन अगर इट इज पॉसिबल कि जैसे B1 है और यहाँ पर B2, B4, B3, इनमें से दोनों में से कोई एक को उठाकर अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, जैसे मान लो मैंने B3, B4 को उठाया, बाहर की तरफ से उसको ड्रॉ कर दिया, तो ये कौन सा ग्राफ बन गया? प्लानर ग्राफ, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है यहाँ पर।
लेकिन अगर आप ऐसे क्रॉस करके दिखा रहे हो और इसको रिमूव कर मतलब इसको रिमूव करके यहाँ से दूसरी तरह से अगर ड्रॉ नहीं किया जा सकता तो ये प्लानर ग्राफ नहीं है। अगर कर किया जा सकता है तो ये प्लानर ग्राफ है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये क्या कहता है कि एक कंप्लीट जो ग्राफ होता है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। सॉरी, आपको एक पॉइंट का माइंड में रखना है, वो ये क्या है, नोट आपको माइंड में रखना है कि जो 5 वर्टिसेस, अगर आपके पास 5 वर्टिसेस वाला ग्राफ गिवन है, 5 वर्टिसेस ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ अगर अवेलेबल दिया हुआ है, 5 वर्टिसेस वाला कंप्लीट ग्राफ दिया है, तो वो नॉन प्लानर होता है। हमेशा याद रखना, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज नॉन प्लानर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ देयर आर, मान लो आपके पास इफ देयर आर 20 वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस है, 20 वर्टिसेस। if you there are 20 vertices, each of डिग्री 3, हर एक की डिग्री कितनी है, 3 है। देन हाउ मैनी रीजन्स, देन हाउ मैनी रीजन्स, हाउ मैनी रीजन्स डज ए does a repetition of this planar graph, sorry, represent to this, represent to this planar graph। कैसे पता चलेगा, कैसे निकालोगे रीजन को, आपने फॉर्मूला लगाना है, r इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2। हाउ मैनी number of vertices, that is 20, and plus 2, how many edges, how can you calculate edges, edges के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, नंबर ऑफ edges इज इक्वल टू n माइनस 1/2। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वर्टिसेस को, 20 माइनस 1, 20 माइनस 1/2, 2 10 20, 10 into 19, that is equal to 190, but it is not a correct answer. Just a minute, here we will use another formula for calculating number of vertices. Just a minute, wait. Here this formula will be not be implemented because we have given degrees. So we will use another formula for calculating number of edges. That formula will be vertices multiply degree divide by 2. Here we will use this formula. Now vertices 20, degree 3,
डिवाइड बाई 2, 2 10 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। तो यहाँ पर एजेस लिख देने 30, 30 प्लस 2 32 माइनस 20 we will get 12, 12 is the answer of reason. Okay. Now next is undirected graph. Undirected graph. This is last topic of this video because battery of my laptop is very low. Undirected graph means when when there is no direction is given. For example, this is V1, V2, V3. Here there is no given direction. That is known undirected graph. When we give direction like this, these are the direction. This is called directed graph. Now I am going to close this video. I will discuss next topic in next video. Thank you for watching my video. If you like my video, please like and share my channel with your